Hello, my dear students. Welcome back in your online classes. In your previous class, we have talked about prepositions. I told you that we are going to discuss about prepositions in your last classes. And I already explained you that preposition which we are going to define in 3 parts. Do you remember that? Very good. It was place, time, movement. I've already explained you about the place, and today we are going to discuss about prepositions of movement. Fine, students. So if you are still having any doubts, kindly go back the previous video and check there what do you mean by prepositions and what we have already studied in prepositions of place. And today the thing which we are going to discuss, that is prepositions of movement. Before I go ahead, students, I want all of you to write down the spelling of movement, because when I say movement, most of you write this moment. You all are always confused movement and moment. So remember, my dear students, that movement is going to define you the actual situation or actual movement when the noun or pronoun is working. And the moment is basically a word which explains you about a 1 second or about that particular timing, about that particular duration. So always remember, students, that moment word is not correct. Movement word is correct. Never get confused with the word which is moment and movement. Hope this is clear to everyone. So let's go ahead. So what we are going to study today, students, that is your prepositions of movement. Fine. So here we are going to read about your prepositions of movement. This is our today's topic. I request all of you to write down the definition. Okay, let me just erase this. It's not necessary for you to remember. Okay, students, just write it down. Prepositions of movement. So we can go for a short form, right? A POM, it means preposition of movement. A POM tells us what it tells us about the movement of someone or something. Yesterday what we have studied, that a preposition of place tells us where someone or something is. And today what we are going to discuss, that the prepositions of movement tells us about the movement of someone or something. Is it clear to everyone? Fine. So for example, if I just ask you, where are you sitting right now? I believe everyone is sitting here and there. Might be someone is on the chair, someone might be sitting above the bed, or you might be sitting
on your bed, and like this. So remember student, never get confused. Remember one thing, if any word is going to describe the place, for example on the bed, it means it's showing the place, it means where you are sitting. Remember student, the word is where you are sitting, that is place, that is not your movement. But I am asking about the movement of someone or something. It means, for example, I say they quickly climbed up the stairs. Who? They. And how they climbed up the stairs? They quickly climbed up the stairs. यानी वो सीढ़ियां कैसे चढ़े? सीढ़ियां बहुत जल्दी से ऊपर की ओर चढ़े, up the stairs. और फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम वॉकड डाउन द स्ट्रीट. राम और श्याम स्ट्रीट के किस तरफ गए? नीचे की ओर गए. तो नीचे की ओर जब जाएंगे तो क्या वो वहीं पे खड़े रहेंगे? नो, दे हैव टू मूव देयर बॉडी. तो उनको चलना होगा. ऐसे ही था, जब आपको सीढ़ियां चढ़नी है तो आपको मूव करना पड़ेगा कि वहीं पे बैठे रहना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको मूव करना पड़ेगा. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस क्लास व्हेन आई सेड दैट द कैट is the pencil is on the chair, under the chair. तो पेंसिल कहाँ थी? चेयर के नीचे थी. क्या पेंसिल वहां कोई डांस कर रही थी? नो, द पेंसिल वॉज एक्चुअली लेइंग ओवर देयर. पेंसिल सिर्फ उस चेयर के नीचे थी. पेंसिल वॉज नॉट मूविंग. बट हेयर when you just listen the word, you are able to know that what kind of movement is happening. चाहे वो आपकी लिविंग थिंग हो, चाहे वो आपकी नॉन लिविंग थिंग हो, उसमें किस तरह की मूवमेंट आ रही है, वो अगर आपको किसी भी वर्ड से पता चलता है, दैट बिकम्स योर प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट के कौन कौन से होते हैं. फॉर एग्जांपल अप, द सेम वे डाउन. अप से ही बना है आपका अप साइड, डाउन साइड. The same way you can write it down into, onto, around, across. All of you have already read one poem, Ice Cream Man. In that Ice Cream Man, the children were clustered around the ice cream man's cart. सो बच्चे कैसे खड़े थे? उसके चारों तरफ खड़े थे. तो चारों तरफ खड़े होने के लिए उन लोग को मूव होना पड़ा है ना. सो वो अराउंड होता है. द सेम वे अलोंग, थ्रू, टू, टूवर्ड्स, ओवर, many more बच्चे. There are many more words which defines you the actual movement, right? So can we just try, because I don't think so that movement I can show you with the help of my pictures, because my picture is not very good. But still, for example, let's take one example. Ram dived dash the river. राम ने रिवर में छलांग. अब राम ने रिवर छलांग, आपके पास तीन वर्ड्स हैं. राम, यू नो वेरी वेल दैट इट्स योर नाउन और प्रोनाउन. डाइव्ड, दैट इज योर वर्ब. द रिवर इज आवर ऑब्जेक्ट. लेकिन राम ने वर्ब के साथ मिलके ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इफेक्ट डाला है, उसके लिए उसे चाहिए एक हेल्पिंग वर्ड, यानी कि हमारा प्रेपोजिशन, जो कि आपको डिफाइन करेगा कि इन दोनों ने मिलके ऑब्जेक्ट के साथ कैसे और क्या किया. तो राम को जब रिवर में छलांग लगानी होगी तो हमारे मुंह में अपने आप ये वर्ड्स आ जा रहा है कि राम ने रिवर में छलांग लगाई. इट्स वेरी क्लियर. राम ने रिवर के अंदर छलांग तो नहीं लगाई. अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली ही इज नॉट एबल टू लिव मोर. या फिर राम रिवर के ऊपर तैरता हुआ तो नहीं रह गया, ऑब्वियसली वो रिवर के अंदर गया होगा. सो हेयर यू कैन वर्ड इनटू. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इनटू एंड इन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड.
इन का मतलब होता है सिर्फ में। अगर आप हम लोग अगर एक वर्ड इसको और एक लेके हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से राम लिव्ड इन चेन्नई फॉर 5 years, यानी राम जो है चेन्नई में 5 साल से रह रहा था। तो यहां पे आपका इन का मतलब से में आ गया। बट यहां अगर आप देखिएगा तो राम डाइव्ड इनटू द रिवर, यानी जब किसी भी चीज के अंदर की बात करें, कुआं हो, नदी हो, तालाब हो, तो उसके अंदर के बारे की अगर किसी भी चीज के बारे में बात किया जाए तो उसके लिए वर्ड जो आपका यूज होता है वो इनटू होता है, ना कि इन होता है, मूवमेंट बताने के लिए, क्योंकि राम को उसके अंदर कूदना था। द सेम वे ऑन वर्ड जो है हमारा, मैंने देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपका इनटू और ऑन टू। अगर आप ध्यान से देखोगे एक इनटू लिखा है, एक ऑन टू लिखा है। हम लोगों ने कल जब मूवमेंट ऑफ प्लेस पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इन और ऑन दोनों को प्लेस के लिए बताया था। लेकिन जैसे ही इन दोनों वर्ड्स के साथ टू लग जाता है, ये आपकी मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। यानी इसी सेम प्रेपोजिशन को जब हम लोग मूवमेंट में डालते हैं तो वो उसके पीछे टू लग जाता है। अब आपको एक टू वाला वर्ड भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द कैट jumped onto the table, यानी बिल्ली ने छलांग टेबल पर से लगाई। यानी द कैट जम्प्ड onto the table, टेबल की तरफ से उसने छलांग लगाई, तो ऑब्वियसली बिल्ली को हिलना पड़ा होगा उसके लिए, राइट? तो जब उसको हिलना पड़ा होगा, अगर हम उसके हिलने की बात करें तो मूवमेंट है। लेकिन अगर आप सेम वर्ड को ही दोबारा अगर मैं देखती हूं ऑन वर्ड से, फॉर एग्जाम्पल द स्टैचू mounted on the platform is old। वो जो स्टैचू है जो कि माउंटेड यानी बना हुआ है, कहाँ पे? प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, वो बहुत पुराना है। तो यहाँ पे आपका ऑन वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है बच्चे? इफ यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, द स्टैचू माउंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म इज ओल्ड। जो स्टैचू उस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है वो बहुत पुराना है। आपको ये जो वर्ड है वो आपको डिफाइन कर रहा है इस स्टैचू की प्लेस। सो दैट इज द रीजन जब आप ऑन वर्ड के साथ चलते हो तो वो सिर्फ आपको प्लेस बताता है, बट व्हेन ऑन वर्ड कम्स विद टू, इट्स एबल टू डिफाइन यू द मूवमेंट। ये आपको मूवमेंट बताता है, ये आपको प्लेस बताता है। दीज आर द डिफरेंसेस। होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसी तरह से आपके पास जो हम लोगों ने वर्ड्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, अप, डाउन, अप साइड, डाउन साइड, अराउंड, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू, टू, टूवर्ड्स, ओवर, मेनी वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं उस प्रीपोजिशन की मूवमेंट को। इफ यू विल जस्ट सी इट वेरी केयरफुली, टू या टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स ही ऐसे हैं जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाते हैं तभी ये वर्ड्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, गो टू बेड नाउ। अगर मैं कहूँ गो टू बेड नाउ तो मैं आपको क्या कह रही हूँ? आप जहां पे भी खड़े हो वहां से किधर की ओर जाना है? आपको बेड की तरफ जाना है। इट मीन्स आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी योर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस। जो घोड़ा है वो फेंस के ऊपर से कूद गया, तो कूदने के लिए उसे जंप करना पड़ा होगा, कुछ एनर्जी लगी होगी, अपनी बॉडी को मूव करना पड़ा होगा। यस, so this is how you will easily find out the preposition of movement. So basically a preposition of movement tells us the movement of someone or something. Hope it's very much clear to you students. I will send you the worksheets related to that and you have to do it. If you have any doubts, kindly message me. Thank you students.